آداب، میں ہوں محمد رفیع احمد۔ پہلے خاص خبریں۔ کوزیکوڈ طیارہ حادثے میں مہلوکین کی تعداد 19 تک پہنچ گئی۔ طیارے کے ملبے سے کاکپٹ وائس ریکارڈر ہوا دستیاب۔ 100 سے زائد زخمی، زیر علاج، 22 افراد کی حالت تشویشناک۔ مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے کہا، زبردست بارش کی وجہ سے ہی طیارہ رن وے پر پھسل گیا، حادثے کی تحقیقات کا آغاز۔ وزیراعظم نریندر مودی آج دلی میں راشٹریہ سوچھتا کیندر کا کریں گے آغاز۔ سوچھ بھارت مشن کے تحت حصول کامیابیوں پر طلباء کے ساتھ وزیراعظم کریں گے تبادلہ خیال۔ کورونا ٹیسٹوں میں اضافے کے لیے ریاستی حکومت کے اقدامات، مزید 10 لاکھ ریپڈ اینٹیجن خریدنے کا فیصلہ۔ اور ریاست میں کورونا کے 2256 نئے کیسز، کورونا متاثرین کی تعداد 77,513 تک پہنچ گئی۔ اور اب تفصیل۔ مرکزی وزیر شہری ہوابازی ہردیپ سنگھ پوری نے بتایا کہ کیرلا میں مانسون سرگرم ہے، جس کی وجہ سے زبردست بارش ہو رہی ہے۔ بارش کی وجہ سے ہی کوزیکوڈ ایئرپورٹ کے رن وے کو نقصان پہنچا۔ انہوں نے بتایا کہ رن وے پر طیارے کے پھسل جانے کی وجہ سے ہی حادثہ پیش آیا۔ بتایا گیا ہے کہ وندے بھارت مشن کے تحت اس طیارے سے دبئی سے 190 مسافرین کیرلا پہنچے تھے۔ حادثے میں 18 مسافرین ہلاک ہو گئے۔ عہدیداروں کے مطابق رن وے پر لینڈ کرنے کے بعد طیارہ پھسل کر 35 فٹ گہری کھائی میں گر پڑا، جس کی وجہ سے طیارے کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ حادثے میں ہلاک ہونے والوں میں پائلٹ کمانڈر کیپٹن دیپک ساتھے اور کو پائلٹ اکھلیش بھی شامل ہیں۔ پیسنجرز تھے، اس میں دو پائلٹس اور انیہ باقی ویکتیوں کی مرتیو ہوئی ہے۔ دس از موسٹ انفارچونیٹ، اور میں جیسے کہتا ہوں کہ ایون 1 لائف لاسٹ از 1 لائف ٹو مینی۔ اور باقی جو ہے 127 جو میرے پاس جانکاری ہے وہ ہسپتال میں ہے، باقی لوگ ریلیز کر دیے گئے ہیں۔ ہم پرارتھنا یہی کرتے ہیں کہ باقی جو انجرڈ ہیں دیٹ دے ریکور ویری کوئکلی، اور ہماری اس کے لیے ہم پرارتھنا کرتے ہیں۔ شہری ہوابازی اور ڈی جی سی اے کے سینئر عہدیداروں کا اجلاس آج دلی میں منعقد ہو رہا ہے۔ اس اجلاس میں کوزیکوڈ طیران گاہ پر ایئر انڈیا کے طیارے کے حادثے کے شکار ہونے کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ ایئرپورٹ اتھارٹی آف انڈیا کے حکام اور ایئر نیویگیشن سروس کے ارکان اس اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اسی دوران ڈی جی سی اے کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے میڈیا کو بتایا کہ حادثے کی تحقیقات کا آغاز ہو گیا ہے۔ ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن بیورو مقام واقعے پر پہنچ گئے اور تحقیقات شروع کر دیں۔ بتایا گیا ہے کہ حادثے کے متاثرین اور مہلوکین کے ارکان خاندان کی مدد کے لیے 2 خصوصی طیارے ممبئی اور دلی سے کوزیکوڈ پہنچے۔ مرکز کی جانب سے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کے انعقاد کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ کووڈ وبا کے پیش نظر مانسون اجلاس ملتوی ہو رہا ہے۔ حکومت کی جانب سے اگست کے اواخر یا سپٹمبر کے اوائل میں پارلیمنٹ کا اجلاس طلب کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ اجلاس کے انعقاد کے لیے تمام امکانات پر غور و خوض کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں لوک سبھا اور راجیہ سبھا دفاتر سے حکومت کو بعض تجاویز پیش کی گئی ہیں۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کا اجلاس سینٹرل ہال میں 2 سیشنز میں علیحدہ طور پر 4 گھنٹے منعقد کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ اس پر قطعی فیصلہ حکومت کی جانب سے کیا جائے گا۔ وزیراعظم نریندر مودی آج سوچھ بھارت مشن کے تحت راشٹریہ سوچھتا کیندر کا افتتاح کریں گے۔ گاندھی جی چمپارن ستیہ گرہ کی 100 سالہ تقاریب کے موقع پر 10 اپریل 2017 کو وزیراعظم نے مہاتما گاندھی کو خراج عقیدت کے طور پر پہلی مرتبہ راشٹریہ سوچھتا کیندر کے قیام کا اعلان کیا تھا۔ اس موقع پر وزیراعظم ملک کی تمام ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں سے آنے والے 36 طلباء کے ساتھ تبادلہ خیال کریں گے۔ دلی میں راج گھاٹ کے پاس گاندھی درشن کے قریب جدید ترین ٹیکنیک پر مبنی نمائش کا انعقاد کیا گیا ہے۔ صاف صفائی سے متعلق شعور بیداری کے لیے دنیا کے سب سے بڑے سوچھ بھارت پروگرام کے دوران حاصل کی گئی کامیابیوں کو اس کے ذریعے اجاگر کیا جائے گا۔ ملک بھر میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے نئے 61,537 مثبت کیسز درج ہوئے ہیں۔ کل ایک ہی دن میں 933 اموات ہوئیں۔ ملک میں کورونا سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 20,88,612 تک پہنچ گئی۔
मजमूई तौर पर इस वायरस से 42,518 अफराद की मौत हुई है। इस वक्त मुल्क में 6,88,612 फाल केसेस हैं, जबकि 14,27,006 अफराद को इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। रियासत में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2,256 नए केसेस दर्ज हुए हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक तेलंगाना में कोरोना मुतासरीन की तादाद 77,513 हो गई है। कोरोना से मुतासर होने के बाद रोबा सेहत होने वाले 1,091 अफराद को डिस्चार्ज कर दिया गया। ताहाल इस वायरस से मुकम्मल तौर पर शिफायाब होने वालों की तादाद 54,330 हो गई है। इस वायरस से 14 अफराद की अमवात हुई, जिसके साथ ही रियासत में इस वायरस से फौत होने वालों की तादाद 615 तक पहुंच गई। इस वक्त रियासत में कोरोना के 22,568 फाल केसेस हैं। जीएचएमसी के हुदूद में 464, जिले वरंगल अर्बन में 187, जिले मेडचल में 138 और जिले करीमनगर में 101 मुस्बत केसेस दर्ज हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद व साबिक रुकन पार्लियामेंट नंदी एलैया का इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 78 साल थी। गुज़िश्ता कुछ दिनों से वो खराबी सेहत के बाद हैदराबाद के खानगी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थे। उनके अरकानी खानदान के मुताबिक उन्होंने आज सुबह 10:30 बजे आखिरी सांस ली। नंदी एलैया के इंतकाल पर कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने गहरे रंज का इजहार किया है। मरकज की जानिब से मुल्क में कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए मजीद बाज़ अहम फैसले किए गए हैं। मरकज ने रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को हिदायत दी है कि वो किराना दुकान पर काम करने वाले अफराद, सब्जियां और दीगर अशिया फरोख्त करने वाले की कोरोना वायरस की जांच करवाएं। कहा गया है कि उनकी जांच नहीं की गई तो उनकी वजह से बड़ी तादाद में लोग इन्फेक्शन का शिकार हो सकते हैं। रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को वजारत सेहत के सेक्रेटरी राजेश भूषण की जानिब से रवाना करदा मकतूब में कहा गया है कि टेस्टिंग के अमल में तेज़ी के जरिए मर्ज का जल्द पता चलाना, मुतासरीन को अलग थलग करना, इन्हें तिब्बी मराकज़ में दाखिल करवाना और उनका मुनासिब इलाज कराना शरह अमवात को कम करने के बड़े अनासिर हैं। उन्होंने कहा कि नज़ला, ज़ुकाम और सांस लेने में तकलीफ जैसी बीमारियों पर गहरी नज़र रखी जाए, क्योंकि इनकी ज़्यादातर अलामात ही कोविड से मिलती जुलती हैं। राजेश भूषण ने इस बात पर जोर दिया कि गुंजान आबादी वाले स्लम इलाकों, जेलों और ओल्ड एज होम्स पर खुसूसी तवज्जो दी जानी चाहिए। रियासती हुकूमत ने कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए टेस्टों में इजाफे का फैसला किया है। ताहाल 5 लाख रैपिड एंटीजन किट्स दस्तियाब हैं। मजीद 10 लाख रैपिड किट्स खरीदने की हुकूमत की जानिब से महकमे सेहत को हिदायत जारी की गई है। वाज़ेह रहे कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की जानिब से कल तलब किए गए इजलास में यौमिया 40,000 से ज़ायद टेस्ट करवाने की हिदायत दी गई है। इस वक्त रियासत के 1100 मराकज़ में टेस्ट किए जा रहे हैं। मराकज़ की तादाद में इजाफा किया जाने वाला है। हैदराबाद की तरह मोबाइल टेस्टिंग की सहूलत को अजला में भी वसअत देने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। हैदराबाद और साइबराबाद कमिश्नरेट के हुदूद में प्लाज्मा का अतिया देने वाले अफराद के लिए तहनीती तकरीब मुनक्कद की गई, जिसमें मेगा स्टार चिरंजीवी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस साइबराबाद वीसी सुजनार और चिरंजीवी ने 150 अफराद को तहनीत पेश की, जिन्होंने प्लाज्मा का अतिया दिया है। इस मौके पर चिरंजीवी ने अपने खिताब में कहा कि कोरोना की खतरनाक सूरत हाल के दरमियान प्लाज्मा संजीवनी बूटी की तरह काम करता है। कमिश्नर पुलिस ने कोरोना से रूबा सेहत होने वालों से प्लाज्मा का अतिया देने के लिए आगे आने की ख्वाहिश की। So he has donated plasma thrice. So that was the interesting statement which I drawn my attention. So when I go through that time only I came to know the importance of the plasma. This plasma will have the antibodies for the corona. So these antibodies who are suffering from the corona, and if you can infuse them into that, so it will take care to fight against their corona. So that's how one can come out of the problem. So I thought, how many of Indian people, doctors are giving this kind of. मरकजी हुकूमत की जानिब से मुतवस्सित किसानों को माशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए कई स्कीमात पर अमल किया जा रहा है। इसी के हिस्से के तौर पर किसान अपनी अराजी पर छोटे छोटे तालाब खुदवाते हुए मछलियों की अफजाइश कर रहे हैं।
मरकजी हुकूमत के जल शक्ति अभियान स्कीम के तहत वाटरशेड्स और कुंटों की खुदवाई के साथ मछलियों की अफजाइश में दिलचस्पी रखने वालों के लिए रोजगार जमानत स्कीम के तहत ये काम मुफ्त करवा कर दिया जा रहा है। हुकूमत की जानिब से तालाबों की खुदवाई और छोटी मछलियां मुफ्त सरबराह की जा रही हैं। जिले नलगुंडा रामुला बंडा से ताल्लुक़ रखने वाले बास किसान इस स्कीम से मुस्तफीद हो रहे हैं। చేపల చెరువు తీయాలని అనుకున్నాం, కానీ గవర్నమెంట్ ప్రవేశపెట్టిన జాతీయ ఉపాధి హామీ పథకం కింద చేపల చెరువులు శాంక్షన్ అయితే తీపిస్తారు. దానికి మేము అప్లికేషన్ పెట్టుకుంటే మాకు ఓకే చేసింది గవర్నమెంట్. దానిలో మేము ఒక అరెకరం విస్తీర్ణంలో జాతీయ ఉపాధి హామీ పథకం కింద చేపల చెరువు తీయించడం జరిగింది. దానికి गिरीश चंद्र मर्मू ने आज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के ओहदे का हलफ लिया। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद ने इन्हें हलफ दिलाया। राष्ट्रपति भवन में मुनक़दा तकरीब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अलावा दीगर अहम शख्सियतें मौजूद थीं। ये तकरीब मुकम्मल तौर पर कोविड-19 के क़वायद को नज़र में रखते हुए मुनक़द की गई। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने तस्दीक की है कि मर्दों का आईसीसी और T20 वर्ल्ड कप 2020 जो कोविड-19 की वजह से मुलतवी कर दिया गया है, साल 2022 में ऑस्ट्रेलिया में होगा। भारत मर्दों के आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 के मंसूबे के मुताबिक मेज़बानी करेगा। क्रिकेट के गवर्निंग इदारे ने ख़वातीन के आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2021 को भी फरवरी-मार्च 2022 तक मुलतवी करने का फैसला किया है। कोरोना की वबा की वजह से यह फैसला किया गया। आखिर में खबरों का खुलासा एक बार फिर। कोझिकोड तैयारा हादसे में महलूकीन की तादाद 19 तक पहुंच गई। तैयारे के मलबे से कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर हुआ दस्तयाब। 100 से ज़ायद जख्मी, ज़ेर इलाज, 22 अफराद की हालत तशवीशनाक। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा, जबरदस्त बारिश की वजह से ही तैयारा रनवे पर फिसल गया। हादसे की तहकीकात का आगाज। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का करेंगे आगाज। स्वच्छ भारत मिशन के तहत हुसूल कामयाबियों पर तलबा के साथ वज़ीर आज़म करेंगे तबादले ख्याल। कोरोना टेस्टों में इजाफे के लिए रियासती हुकूमत के इक़दामात, मजीद 10 लाख रैपिड एंटीजन खरीदने का फैसला। और रियासत में कोरोना के 2256 नए केसेस। कोरोना मुतासरीन की तादाद 77,513 तक पहुंच गई।